This is All India Radio, preparing for a different fight, a special feature on the National Center for Divyang Warriors of the CRPF. The Central Reserve Police Force, the largest paramilitary force of the country, with 246 battalions, has neutralized over 700 militants and Maoists during the past 5 years, with full of warriors having undaunted confidence and commitment to the nation. The armed forces playing a key role in every important moment of the country ever since its inception, be it assistance for the merger of small princely states into the Indian Union or handling riot situations in parts of the country, be it a counter-militancy operation or elections in any remote area, be it a peacekeeping operation or a rescue operation during calamities. The CRPF has always been playing mighty role in the nation's march towards the future. The valiant armed force always was ready to take up any challenge and rise it to the occasion many a time during its 81-year-long glorious history and fearless present. The valiant armed police force has adopted emerging technologies to tune itself to the ever-changing security needs of the country and has become a synonym to bravery. Many fearless and confident soldiers and officers made supreme sacrifice by laying their lives in line of duty. There is a well-established mechanism in CRPF to take care of various needs of families of martyrs. But recognizing the need for a robust mechanism in place to look after the personnel who sustained life-threatening injuries in line of their duty, the CRPF has established one of its kind state-of-the-art National Center for Divyang Empowerment (NCDE) in its Rangareddy District Group Center near Hyderabad in Telangana. Inaugurating the NCDE, Union Minister of State for Home G. Kishan Reddy assured all support to Divyang warriors for reskilling and rehabilitating them. CRPF के वीरों को मार्केट ओरिएंटेड स्किल्स के साथ साथ डाटा एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वीडियो एनालिटिक्स इत्यादि में भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। मेरा विश्वास है कि जो निष्ठा सीआरपीएफ के जवानों के देश की रक्षा में दिखाए हैं, वही वे देश की साइबर वॉरियर्स बनकर भी दिखाएंगे। मुझे यह भी सूचित किया गया है कि आगे जाकर पैरा स्पोर्ट के फील्ड में इस सेंटर को सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। Director General CRPF Dr. A.P. Maheshwari said the perception of internal security is changing and the warriors of the force will also be made cyber warriors. इस केंद्र की एक खास बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के उनकी जो परिकल्पना है उसके हिसाब से ये केंद्र केवल सशस्त्र बलों तक ही सीमित नहीं है। ये केंद्र जहाँ पे भी हम व्यवस्थापित हैं, आम नागरिकों के जो विकलांग हैं उनको भी हम ला करके यहाँ पर दक्ष बनाएंगे। और यहाँ तेलंगाना पुलिस में भी ग्रेहाउंड काफी अच्छा काम करती है, उनके भी कई दिव्यांग हैं। तो हमने सभी पुलिस फोर्सेस से भी हमारा वादा है कि उनके जितने दिव्यांग हैं इस केंद्र की सुविधा का लाभ उठाएं, ताकि ये एक नेशनल फैसिलिटी हमने क्रिएट की है और इसको हम जितना और विकसित कर सकते हैं कर पाएंगे। These Divyang warriors, though emerged victorious from difficult situation, have suffered severe physical disabilities and emotional stress. CRPF IG South Sector Sanjay A. Latkar says the NCDE is designed in such a way in which these Divyang warriors will be reskilled in many ways. और इसमें हमारे बल के जो दिव्यांग योद्धा है जिन्होंने इसकी देश की सेवा में अपने विभिन्न अंग खोए हैं, दुश्मनों से लड़ते समय उन्होंने वीरता की गाथाएं रची, ऐसे योद्धाओं के स्किलिंग के लिए यहाँ पर इन्हें इकट्ठा किया जाएगा, जिसमें मुख्यतः इन्हें दिव्यांग वॉरियर से साइबर वॉरियर बनाना हमारा उद्देश्य होगा। शुरुआती के दौर में 2 महीने का इनका प्रशिक्षण होगा, जिसमें हम साइबराबाद के आईटी इंडस्ट्रीज के साथ टाई अप करते हुए उन्हें प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी दे देंगे और क्लासरूम में बिट्स हैदराबाद की द्वारा चलाए जा रहे कोर्सेज से इन्हें प्रशिक्षित कराएंगे। इसके साथ साथ पैरा स्पोर्ट्स की विभिन्न संरचनाएं हमने यहाँ पर की है। Ravinder Kumar Singh, second in command and Saurya Chakra Gallantry Award recipient, says the NCDE is aimed at providing support to the Divyang warriors. He challenged the situation which emerged after he lost one of his limbs in an ambush by left-wing extremists, and today he has become a source of inspiration to other Divyang warriors to boost their confidence levels.
मेरे को अपने दिव्यांग साथियों को मनोबल बढ़ाने के लिए, उन्हें कुछ गेम्स करने के लिए और जिससे आगे भविष्य में कुछ कर सके, ये टास्क मेरे को मिला है। मेरा इंसिडेंट 3 मई 2011 को लोहरदगा में हुआ था। इंसिडेंट के बाद मई में इंसिडेंट हुआ, अगस्त में मैं अपना फुट लगाकर अपने आप चलना स्टार्ट होगा। मैंने अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया। मेरे अंदर था कि मेरे को जिंदा रखा है, किसी कारण के लिए जिंदा रखा है भगवान ने, कुछ ना कुछ मेरे को आगे करना है। मैंने अपना ड्राइविंग विद प्रिकॉशन, ड्राइविंग और अपना जिम ज्वाइन कर लिया, जिससे मैं अपने को फिट रख सकूं। तो उसके लिए मैंने वही टेबल टेनिस अपने जो स्कूल टाइम में खेलता था वही खेलना स्टार्ट किया। और एनएस की तरफ से हमारे जो नॉर्दर्न सेक्टर है उसकी एबल बॉडी टीम में, डिसेबल होते हुए एबल वाली टीम में मैं खेलने उनके साथ गया। तो वहाँ जो लड़कों ने देखा, जो छोटे छोटे बच्चे जो नेशनल खेलते थे टेबल टेनिस के, अजमेर में ये टूर्नामेंट हुआ था, तो उनको लगा अरे अंकल कैसे खेल रहे हैं, तो बड़ा आश्चर्य कर रहे थे। तो मेरे को लगा कि मेरे को और कुछ करना चाहिए। 2014 में हमारे सीआरपीएफ की हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। उसमें मैंने सोचा मेरे को दौड़ना है, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। तो मेरे को लगा मेरे को अपने जवानों के लिए भी कुछ करना चाहिए। मैं दिल्ली में रहते हुए जो भी हमारे इंजर्ड थे जवान, छत्तीसगढ़, झारखंड, श्रीनगर कहीं भी घायल हो जाते थे, तो एम्स ट्रॉमा सेंटर में उनको भर्ती करते थे ट्रीटमेंट के लिए। तो मैं उनके पास जाता था। उसका जीता जागता उदाहरण हमारे साथ है इंस्पेक्टर सुशील, जिनसे आप मिलेंगी। मैं जो ट्रैकिंग, अपने बॉडी को फिट रखने के लिए मैं इस तरह के काम हमेशा करता रहता था कि मैं फिट रहूं, अपने को पहले जैसा बना पाऊं। मैं अपने को सफल पा रहा हूं इस क्रम में। ये फर्स्ट स्टार्ट हुआ। सेकंड बैच के लिए नाम को मैं शॉर्ट लिस्टेड कर रहा हूं कि उनको निकालूं, सेकंड बैच भी अच्छा रहे, उसमें भी अच्छे स्पोर्ट्समैन रहे। The Divyang warriors have accomplished their tasks in the force by not hesitating sacrifices. मैं इंस्पेक्टर सुशील कुमार, रेंज हेडक्वार्टर पटना में पोस्टेड है। मुझे प्रेसिडेंट पुलिस मेडल ऑफ ग्लेंटी 2016 में मिला है। मैं दिव्यांग पारा साइकिलिंग में मनाली टू खारदुंगला भाग लिया था अगस्त 2016 में। एक पराक्रम पदक मिला था 2015 में। 2014 में झारखंड में माओवादी द्वारा इनकाउंटर हुआ था। माओवादी द्वारा अम्बुश लगा के बैठा हुआ था। मैं अपनी ट्रूप्स को लेके मार्च कर रहा था कि एक माइंस ब्लास्ट किया गया। उस माइंस ब्लास्ट में करीबन मैं 20 फीट ऊपर उड़ गया। मेरी बायां पैर जो था झाड़ी में लटक गया था और मेरा दाहिना पैर था वो पूरी तरह मांस उड़ चुका था, ओनली बोन उसमें था। फिर उसी बीच कुछ फायरिंग शुरू हो गया। मैंने अपनी होश आवाज थोड़ा सा भी नहीं खोया। मेरा AK-47 वेपन 5 फीट डिस्टेंस पे था। फिर अपना वेपन को मैंने साफू किया। फिर इक्का दुक्का राउंड में फायर करते रह गया। माने माओवादी को अपने पास आने नहीं दिया। अपनी जो भी जवान वहाँ पे इंजर्ड था सभी को मैं यही हौसला दिलाया कि आप भरोसा रखो, कुछ नहीं हो। तो उसी बीच में मैं 2016 में दिव्यांग पारा साइकिलिंग करीबन 550 किलोमीटर डिस्टेंस पे मनाली टू खारदुंगला पार्टिसिपेट किया। आज मैं अपने पैर से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर इजी वे में पैदल चल लेता हूँ। बाइक भी चला तो A to Z मैं फॉरफिट जवान की तरह। मेरा नाम भोगाड़े रामदास भाऊ, मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। कोबरा बटालियन में 21 फरवरी 2016 में आया था। सर्च ऑपरेशन के लिए निकले थे सुकमा डिस्ट्रिक्ट किस्ताराम। सर्च ऑपरेशन करके वापस आते समय मैं आगे चल रहा था तो आईडी के ऊपर पाँव पड़ा और धमाका हो गया, ब्लास्ट हो गया। मैं थोड़ा उछल गया हवा में। उसके बाद में मैं देखा तो मेरा एक पैर नहीं था, एक पैर गायब हो गया था और एक पैर घुटने के नीचे पूरा कज्ड हो गया था, पूरी हड्डी टूट गई थी, बाहर निकल गई थी। और मैं 43 डेज में पूरा रिकवर करके मेरे यूनिट चला गया था। डॉक्टर साहब बोले थे कि आप छुट्टी चले जाओ, लेकिन मैं बोला कि मैं नहीं जाऊंगा। मैं भर्ती हुआ तो मैं एक अच्छा खासा एक सैनिक था, तो जैसा मैं अच्छा था वैसा मुझे और मुझे पैर लगा दो, मैं चल के घर चला जाऊंगा। मेरा नाम कृष्णकांत रॉय, मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। LWE एरिया में ड्यूटी करते करते 204 कोबरा में पहुंच गया। स्पेशल ऑफ करते करते तो ID ब्लास्ट में फंस गया था। तो इसी में ID ब्लास्ट में एक पैर उड़ गया था। तब भी हम लोग हौसला नहीं तोड़ा, लेकिन राइफल छोड़ा नहीं एवं फायर करते रहा और एक नक्सली भी मार गिराया। उस ट्रीटमेंट करते करते मेरा दिल टूट गया था, जो मैं क्या होगा, अभी क्या कर पाऊंगा। तो अभी मैं ऐसे फील कर रहा हूँ जब मैं रहते टाइम जो यह था, हौसला था, हिम्मत था, अभी पैर नहीं है, तब भी मेरा हौसला एवं हिम्मत उतना ही है, मैं आगे कुछ कर पाऊंगा। मेरा नाम है सुनील कुमार, राजस्थान का रहने वाला हूँ। सिपाही मेरी रैंक है। 2012 में झारखंड नक्सलाइट में मेरा पैर डैमेज हो गया। रात को ऑपरेशन ड्यूटी के दौरान नक्सलियों का अटैक हुआ और पैर डैमेज हो गया पूरा। फिर थोड़ी जिंदगी ऐसे हो गई थी मायूस टाइप की। फिर 2016 में एक फंक्शन हुआ, उसमें गया मैं चंडीगढ़ में। तो वहाँ सब खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, तब पता चला कि हाँ इसका कोई गेम भी होता है। फिर बैडमिंटन ले लिया मैंने, प्रैक्टिस किया। अभी मेरा इसी साल जनवरी फरवरी में मेरा एक गोल्ड लगा है और डबल्स में गोल्ड है और उसमें कांस्य पदक है मेरा। मेरा नाम रामानुज कुमार, मैं 85 बटालियन से हूँ, CRPF, वो बीजापुर में है।
अब मैं ड्यूटी करके लौट रहा था, मैं आगे आगे चला, कुल 35 से 40 लोग थे। वो DSMD नहीं पकड़ पाया, धमाके से ब्लास्ट हुआ। मैं तो सोचा कि अब मैंने राइफल छोड़ा नहीं। मैं सभी साथी को बताया कि भाई तुम लोग मेरे पास अभी मत आओ, मैंने कम से कम 5 या 10 मिनट मत आओ, क्योंकि अभी जब ID लगाएंगे तो इन लोग फायरिंग भी करेंगे तो हमारा साथी लोग थोड़ा सा सब लेट मैंने पोजीशन ले लिए। उस दौरान मेरा पूरा जलन हो रहा था, ये राइट पाँव पड़ा, अब लेफ्ट में पूरा बारूद भर गई पूरा। मेरे को पता, मैं बेहोश नहीं हुआ था। मैं अपना कंपनी कमांडर साहब को, साहब मेरे चिंता मत करो, आप लोग पहले पोजीशन लो, मेरे चक्कर में और जवान क्यूल्जर न हो जाए। फिर मैं आँख से देखा कि मेरा दोनों पाँव काट दिए। हिम्मत नहीं आ रहा, ना आज तक मैं रोया भी नहीं। जो होना था हो गया देश के लिए। Now, at the NCDA, they are being imparted different skills so that their services will have greater relevance and their potential will be channelized to achieve new goals. Initially, over 25 Divyang warriors of the CRPF are joined the first batch to receive training in computer science and in sports. Many of them are confident that they will achieve medals in their choice of sports in the coming days. Clinical psychologist of the center, Dr. Vinod says the confidence levels of these Divyang warriors are very high and are focused on their learning. They're perfectly all right, and physically and mentally they are very strong. That is the reason God has given me one more life. I want to prove. Some of them want to play and participate in the world championships, and someone wants to know about the computer systems and get the jobs in some other countries or the same countries. After seeing them, I felt very happy. They are the warriors. They never had any feeling of any depression or any kind of sadness. Many IT companies and institutions of parasports have partnered with the NCDA by way of MOUs for providing quality training and certification. General Secretary of the Cyber Security Council of Hyderabad, Krishna says, as part of the MOU that CRPF, we will be helping all these Divyangs. They are about around 150 plus in number. We will help them visit the IT companies, get them oriented around the new trends, technologies from time to time while they undergo this upskilling and training at the CRPF campus. State-of-the-art IT laboratory and sports facilities have been set up at the NCDA to groom Divyang warriors in IT skills and in different parasports. Basic amenities at the center have been created in such a way that the Divyang warriors will be completely independent during their daily course. The center makes room for the Divyang warriors in all promising arenas to promote and sustain their confidence and self-esteem. Most importantly, live in dignity, enabling and empowering them in the process to contribute to the force and the country. कंप्यूटर का लैब इतनी बढ़िया है, जो बिट्स के प्रोफेसर सर आते हैं यहाँ पे क्लास लेने, समझने और पढ़ने में बहुत ईजी। हमारे जीवन का एक सेकेंड मोड़ लिया। उसके बाद यहाँ पे देखे गेम एथलेटिक्स भी काफी है, इस गेम में भी मैंने पार्टिसिपेट लिया, तो मैंने सोचा कि इस जीवन में मैंने कुछ नहीं खोया। मैं सिर्फ दौड़ना नहीं है, मैं गोल्ड मेडल लाके दूंगा। CRP के लिए तो करूंगा एवं देश के लिए कुछ करना चाह रहा हूँ। कंप्यूटर पहले जानता नहीं, अभी कंप्यूटर सिखा रहा है, गेम सिखा रहा है, तो गेम में कुछ तो कर लेंगे, इतना हौसला तो है। अभी मेरा प्लान है कि मैं जितनी हो सकते है उतनी प्रैक्टिस करके और देश के लिए मेडल लेकर के आऊँ ओलंपिक्स में। कोई भी काम हम लोग खुद करेंगे, किसी को सहारा की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये स्पोर्ट में जारी रखूंगा। मैं शूटिंग का हूँ, शूटिंग और शॉटपुट का भी मेरा है, वॉलीबॉल भी खेलता हूँ। They become an asset for CRPF and the nation. Besides, it will also create awareness and bring about positive transformation in the mindset of society towards differently abled people. As the Ministry of Home declares the year as Manav Samvedana Varsh for all Central Armed Police Forces, establishing NCDA is likely to create abundant avenues and platforms to channelize the energy of Divyang warriors by helping them in acquiring new skills which will minimize their dependency on others, simultaneously assisting them in attaining their true potential. Now, these Divyang warriors are preparing for a different fight to achieve new goals and contribute in a different way in their new dawn for their long innings in the armed services. You just heard a special feature preparing for a different fight on the National Center for Divyang Warriors of the CRPF. Written by Srimati M.S. Lakshmi, supported by Sri Bhiksha Ketawat.
The program was brought to you by the Regional News Unit of All India Radio, Hyderabad.